Hello students, good morning everyone. Myself Monica Jain from Government Senior Secondary School Ghel, Ambala City. Today we are going to start a very important chapter of modern physics. This is atoms, chapter 12 in your course book. This chapter gives you a vast understanding of the history through which we understand the matter today. So just look at the picture on the left hand side. This is of ऋषि कण्व. ये एक इंडियन ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले मैटर की एटॉमिक नेचर को डिस्कवर किया. उन्होंने ऐसे सोचा कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन कणों को उन्होंने नाम दिया अणु या परमाणु. तो ऋषि कण्व सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर को डिस्कवर किया. नाउ वी लुक एट द सेकंड पिक्चर एट द राइट. इट इज जॉन डाल्टन, जिनके नाम से अब सब बहुत अच्छे से परिचित हैं. जॉन डाल्टन की सबसे पहले ऑथराइज थ्योरी आई थी जिसमें मैटर को एटम से मिलकर बना हुआ माना गया. सबसे पहली जो अथॉरिटेटिव थ्योरी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी. देन उसके बाद रिसर्चेस चलती रही और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर को सपोर्ट किया. जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट मॉडल था दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन. A first atomic model of the atom is credited to Mr. J.J. Thomson. Then Rutherford atomic model came out, and in the same timeline, Niels Bohr modified that model, and we are going to study these two models in detail in this chapter. So this is all the way atom. This we today known as that atom is made up of electrons, protons and neutrons. Protons and neutrons, they reside in the central part of the atom, and electrons move around the nucleus in various orbits. Okay. अब इसके साथ साथ हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में. मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या थी इसकी, थ्योरेटिकल, और इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड कंसेप्ट्स. So let's try to understand that what we are going to learn in this chapter. The first thing that we are going to start with is Thomson's atomic model. Then Rutherford's alpha scattering experiment, which formed the basis of Rutherford's model. Associated with alpha scattering experiment, distance of closest approach and impact parameter. Then we come forward to the electron orbits, energy of electron in its orbit, and then limitations of Rutherford's atomic model. Then we will come forward with numericals based on Rutherford's experiment. This we are going to study in this lecture, and this will be continued in the next part also, where we will be starting with Bohr's atomic model and the related concepts. So now students, let's start with the first thing, that is Rutherford's alpha scattering experiments. But before that, we will be two words for Thomson atomic model. Dalton's atomic theory, back down to history. क्या कहा था डाल्टन ने? All elements are consisting of very small invisible particles called atoms. Atoms of same element are exactly the same, and atoms of different elements are different. For example, हाइड्रोजन के सभी एटम्स एग्जैक्टली सेम होंगे, पर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट होंगे. सो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड दिस वाज ए पाथ ब्रेकिंग थ्योरी, राइट. सो टाइमलाइन क्या कहती है कि अब हमने एटम का स्ट्रक्चर समझना है. The first attempt in this respect was Thomson atomic model. अब थॉमसन ने क्या मॉडल को, एटम को कैसे एज्यूम किया? उन्होंने ऐसे सोचा कि जो एटम है इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर जो है वो एम्बेडेड है. आप देख ही रहे हो, जैसे
इसको इसी मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। पुडिंग को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया और इलेक्ट्रॉन्स दे वर कंसीडर्ड एज प्लम्स ऑन दैट पुडिंग. So let's read it out. He postulated that every atom is uniformly positive charged sphere of radius of the order of 10 to the power minus 10 meter, in which entire mass is uniformly distributed and negative charged electrons are embedded randomly. As I earlier told you, ये जो orange color show किया गया है, this is considered as total positive charge and electrons are embedded randomly on it. And the total positive charge is equal to total negative charge because atom as a whole is neutral. This was also known as plum pudding model of the atom. So now we come forward to Rutherford's alpha scattering experiment. Now before starting with Rutherford's alpha scattering experiment, first we need to understand limitations of Thomson atomic model. It could not explain the origin of spectral series of hydrogen and other atoms. आप लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कई सीरीज की वेवलेंथ्स जो हैं वो एमिट होती हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ये सब आपने पढ़ा है. थॉमसन एटॉमिक मॉडल इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सेकेंड, it couldn't explain large angle scattering of alpha particles. So this we are going to study in alpha scattering experiment, that how alpha particles they are scattered when they collide with gold foil. But this experimental observation could not be explained by Thomson atomic model. So let's first understand, discuss in detail रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है, पर अब हम इसको एक नई लाइट में स्टडी करेंगे जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बेस बनेगा. ठीक है, तो आइए पहले समझें कि अल्फा पार्टिकल क्या है. एन अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 protons and 2 neutrons. Therefore, an alpha particles has 4 units of mass. इसका जो मास है वो 4 यूनिट ऑफ मास, मतलब 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज है दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. आपको याद है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज और मास इस तरह से हम डिसाइड करते हैं. अब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को डन किया and his collaborators also performed this experiment. So this experiment is also known as Giger-Marsden experiment also. So let's first try to understand this diagram. Let's see that what this diagram says. Here is a source of alpha particles. मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं. वो जो रेडिएशंस हैं वो लेड ब्रिक्स में से पास करते हैं. क्योंकि लेड बाकी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो अल्फा पार्टिकल की एक नैरो स्ट्रीम, एक नैरो बीम जो है वो गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक किया. उसके बाद गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस साइड डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ उधर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो वापस भी हो गए, मतलब बैकवर्ड भी उनकी स्कैटरिंग हुई. These alpha particles they were observed on a zinc sulfide screen. यहाँ पे जो डिटेक्टर था उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑब्जर्व करता था कि किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल्स गए हैं. ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ वेरी फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड. सम पार्टिकल दे आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, but most of the alpha particles they were either undeflected or deflected through small angles. So एक बार इसकी एक और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत इजी अंडरस्टैंड करने में. So this was the actual experimental setting. Here was a source of alpha particles.
एक लेड कैविटी के अंदर एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा गया and these alpha particles they were allowed to fall on a gold foil. From the gold foil, scattering was there as you can see from here. In different directions alpha particles जो है वो move हुए और ऑब्जर्व क्या किया गया कि जो टारगेट न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल स्ट्रेट वे कोलाइड करते हैं, दे आर डिफ्लेक्टेड बैक. जो ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, दे आर either undeflected or deflected through small angles. But those alpha particles which are closer to the central line of nucleus, they are deflected more. You can have a look on this. ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल इतने से डिस्टेंस पे, मतलब जिसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ रहे हैं. क्योंकि ये बहुत कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये डिफ्लेक्ट हो गया. उससे भी पास से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ और वो बिल्कुल ही बैकवर्ड चला गया. पर जो अल्फा पार्टिकल्स दूर थे या ज्यादा दूर थे, दे वर अनडिफ्लेक्टेड और दे वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. So this was students the observations of this experiment. So what were the conclusions? Now let's go for observations. Most of the alpha particles passed straight through the gold foil, मतलब undeflected pass हो गए. और रदरफोर्ड ने क्या conclude किया? It indicates that most of the space in an atom is empty. Second observation थी उनकी, some of the alpha particles were scattered only by small angles, as I have already explained, just of the order of a few degrees. Conclusion उन्होंने क्या लिया? That alpha particles being positively charged and heavy compared to electron could be deflected by heavy and positive region in an atom. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते थे. क्यों? एक तो उनका चार्ज नेगेटिव था, वो तो अपनी ओर अट्रैक्ट करते. दूसरा वो बहुत लाइट थे, तो अल्फा पार्टिकल्स का पाथ चेंज करना जो है वो उनकी कैपेसिटी में नहीं था. अब अल्फा पार्टिकल का पाथ चेंज हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड उन्होंने ऐसे एज्यूम किया. तो रदरफोर्ड ने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय सम हेवी पार्टिकल्स. ओके, so it indicates that positive charges and most of the mass of the atom, they are concentrated at the center called nucleus. Now we come to the third observation. A few alpha particles, approx 1 in 9,000, काफी बुक्स में 1 in 8,000 भी है, they were deflected through large angles, even greater than 90 degree. Some of them were even retraced their path, that is angle of deflection was 180 degree. आप लोगों ने अभी लास्ट डायग्राम में देखा था कि जो पार्टिकल्स हेड ऑन कोलाइड करते हैं न्यूक्लियस की डायरेक्शन में, वो 180 डिग्री के थ्रू अपना पाथ रिट्रेस कर लेते हैं. यहाँ से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? अल्फा पार्टिकल्स विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस directly gets retarded due to Coulomb's force of repulsion and ultimately comes to rest and fly off in opposite directions. जो काफी पास से निकलते हैं, they get retarded due to Coulomb force of repulsion and they can come to rest and then they fly off in opposite direction, जो कि आपने पिछली पिक्चर में देखा था. So these were all the observations and these were the conclusions related to these observations. Okay. अब इसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड ने इन कंक्लूजन्स पे बेस्ड दो टर्म्स को डिफाइन किया. एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड सेकंड इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक, तो ये जो अभी हम इन दोनों को समझेंगे एंड देन वी विल बी स्विचिंग ऑन टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इन पर्टिकुलर. So before going for the impact parameter and distance of closest approach, एक बार उनकी जो डिस्कवरी थी, मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उसको समझते हैं. रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट
to deflect the alpha particle backwards, it must experience a large repulsive force. This force could be provided if greater part of the mass of the atom and its positive charge were concentrated tightly at the center. This led Rutherford to postulate that entire positive charge of the atom must be concentrated in a tiny central core of the atom. This tiny central core of each atom is called atomic nucleus. So ये वो मॉडल है जिसको आज हम जानते हैं कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑल अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. आप देख रहे हो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स. ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं, रेड कलर में प्रोटॉन और ग्रे कलर में न्यूट्रॉन. So this is the atomic model which we today know as. Okay, so students, let's come forward with the next slide. So now defining distance of closest approach. Distance of closest approach is the minimum distance between alpha particle and center of nucleus just before it reflects back by 180 degree. इसको कैसे समझेंगे हम? इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. लेट्स सी दैट इट इज़ एन एटम. इसको हमने एक एटम कंसिडर कर लिया और उसके अंदर हमने एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को कंसिडर किया. ठीक है, ये पर्पल कलर में अल्फा पार्टिकल जो है वो आ रहा है. अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो न्यूक्लियस उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उसके कारण इसके पास आते आते थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, और वो जो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई दैट विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक, तो अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन करेंगे. When distance between alpha particle and the nucleus is equal to the distance of closest approach, the alpha particle comes to rest. At this point or distance, the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electric potential energy of the system. At this point, जितनी भी इसकी kinetic energy थी, that is totally converted into potential. So let's apply the law of conservation. This is half mv square. Kinetic energy is half mv square. 1 by 4 pi epsilon naught 2z square. 2z square का कहाँ से आया ये? आपको याद होगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था. ये पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू what it is equal to? It is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r, right? अब यहाँ पे हमारा जो q1 है दिस इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज Ze. अल्फा पार्टिकल के चार्ज है 2e, राइट? उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2z स्क्वायर और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r नॉट. तो हमारा रिलेशन बन गया पोटेंशियल एनर्जी का 1 by 4 pi epsilon naught 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई r नॉट. अब यहाँ से r नॉट को जो है इधर ले जाओ, लेफ्ट साइड पे ले जाओ और हाफ एम वी स्क्वायर को राइट साइड ले आओ. तो फाइनल हमारा r नॉट क्या बन गया? 1 by 4 pi epsilon naught 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर. सो अब यहाँ पे जो रेडियस जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है हम इस रिलेशन को लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना? जनरली एनर्जी अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की, तो वो कितने डिस्टेंस तक जाएगा ये आप कैलकुलेट कर पाओगे. बट हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस? ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. So this distance gives us an estimation of size of nucleus. Obviously size of nucleus will be smaller than this
value, this calculated value. तो अभी एक आगे स्लाइड्स में हम लोग इससे रिलेटेड एक आधा न्यूमेरिकल भी करेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे कि आर नॉट किस तरह से डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेट होगा. Okay, so this was distance of closest approach, and now we will switch over to the impact parameter. The next term that we are going to understand, this is impact parameter. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इम्पैक्ट पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट बना, that enabled us to understand the structure of atom also. The trajectory traced by an alpha particle depends on the impact parameter of the collision. ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग होता है पाथ, मतलब अल्फा पार्टिकल कैसा पाथ लेगा गोल्ड फॉयल से कोलिजन के बाद, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. It depends on the impact parameter of the collision. Now let's go for that what impact parameter is. It is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the central line of the nucleus. इस डायग्राम में काफी क्लियर है, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस ये रिप्रेजेंटेड है, ये अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ये अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर में और सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर. इसको बी से डिफाइन करते हैं. बी इज द नोटेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर. अब यहाँ से देखें कि जब इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो उस केस में इस पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा लगेगा और it will be scattered through large angles. But if impact parameter is more, then repulsive force will be less, and hence the trajectory will be different, and this alpha particle can go undeflected or it will deviate through small angles. So इसको देखते हैं एक बार और. For large impact parameters, force experienced by alpha particles is weak, as force varies inversely as square of the distance, and alpha particle will deviate much smaller and vice versa. Rutherford calculated B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z e square cot theta by 2 divided by Ek. Here Z is the atomic number, theta is the angle of deflection, Ek is the kinetic energy of the particle. ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू अगर कम होगी तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा बनेगी, और अगर बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो थीटा की वैल्यू कम बनेगी. यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो दैट इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस देन डिफ्लेक्शन इज मोर. इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, डिफ्लेक्शन इज डिफरेंट, मतलब वेरी लेस. इम्पैक्ट पैरामीटर इज क्वाइट लार्ज, then deflection is almost no deflection is there. That means particles go undeviated. So this completes our concept of atom, that because most of the alpha particles are passing straight, that means most of the space in an atom is empty. Okay, so we come forward with these concepts to the Rutherford atomic model now. Before going on to model, let's go forward with this distance of closest approach once again. अब इसको न्यूमेरिकल को करते हैं. In a Giger-Marsden experiment, what is the distance of closest approach to the nucleus of 7.7 MeV alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction? अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. दिस इज 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वी हैव डन के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 2E into ZE divided by D, मतलब पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल इंक्रीज होती है.
At a particular distance, potential energy is equal to kinetic energy. That distance is called distance of closest approach. जैसे हमने कॉन्सेप्ट में किया, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2z² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू k. अब k क्या है? 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया जूल में. 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जाउल. ओके, अब 7.7 को मल्टीप्लाई किया 1 MeV की वैल्यू से एंड वी गेट 1.2 इंटू 10 टू पावर -12 जूल. 1/4πε0 की वैल्यू भी हमें मालूम है. सो E की वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया. ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अपनी नोटबुक्स पे आप करके देखिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. So this is 3.84 coming out, 3.84 into 10 to power -16 Zm. Z यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन था कि वी आर डीलिंग विद हाइड्रोजन एटम और सम अदर एटम. सो इसलिए हमने Z को इंटैक्ट रखा और Z के टर्म्स में D को कैलकुलेट कर दिया. So this is here children, distance of closest approach in this case. Okay. So let's come forward to the next slide. Now we switch on to Rutherford's atomic model. अभी जो हमने सारा पीछे स्टडी किया उसके बेस पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो पोस्टुलेट किया गया, they were the major postulates of this model. First is, an atom is composed of positively charged particles. Majority of the mass of an atom was concentrated in a very small region, and this region is known as nucleus of the atom according to Rutherford. Second, atomic nucleus is surrounded by negatively charged particles called electrons. The electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path at a very high speed. These fixed circular paths were termed as orbits. Now the third point. An atom has no net charge, or they are electrically neutral, because electrons are negatively charged and nucleus is positively charged. A strong electrostatic force of attraction holds together the nucleus and the electrons. कूलम फोर्स हमने पढ़ा हुआ है पहले कि कहीं पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा. एंड लास्ट ऑफ ऑल, इम्पैक्ट पैरामीटर से ये कंक्लूड किया गया that size of an atom is very small in comparison to the total size of the atom. Rutherford ने इसको कैलकुलेट किया था that size of nucleus is equal to 10 to power -5 times the size of atom. Okay, note it down. Size of nucleus is equal to 10 to power -5 times the size of atom. So these were, students, all the postulates of Rutherford's atomic model. So we switch over to the next. This is electron orbits. Rutherford's atomic model पे बेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया. सो उसको अब मैं आपको समझाऊंगी. लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव इन दिस टॉपिक. सो फार दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द एटम. इस पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Ze प्लस Ze. अगर ये हाइड्रोजन होगा तो Z की वैल्यू 1. अगर हीलियम है तो Z is equal to 2. If it is lithium, then Z is equal to 3. Because Rutherford atomic model was proposed for a single electron atom. So we are talking of H, He plus, Li plus 2, Bi plus, Be plus 3. That's all. इसके आगे के एटम्स जो हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते. तो इन यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को वो करेंगे, कन्फाइन करेंगे. सो अब फाइनली हमारे पास एक न्यूक्लियस है. द चार्ज ऑन दैट न्यूक्लियस इज प्लस Ze एंड वी हैव गॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड. द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इज E. इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट फोर्स इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स. इलेक्ट्रॉन इज attracted towards the nucleus. So this force will act as centripetal force, and this will keep on rotating the electron around the nucleus. The electric force of attraction
between the revolving electron and the nucleus provides the requisite centripetal force Fc to keep them in the orbits. Thus, for a stable orbit in a hydrogen atom, centripetal force is equal to electrostatic force. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लिया है. अब यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बन गया. अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, आर के साथ आर कटेगा तो मेरे पास यहाँ आ गया mv स्क्वायर. mv स्क्वायर कम्स आउट टू बी ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है ना. तो अगर हम दोनों साइडों पे 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो जो लेफ्ट साइड पे जो फिगर है ये मेरे पास बन गई काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी ZE स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन गया. सो वी कम फॉरवर्ड नाउ टू द पोटेंशियल एनर्जी. अपनी नोटबुक पे लिखें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. Q1 की वैल्यू भी पुट कर दी और Q2 की भी, और डिस्टेंस तो R है ही, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आ गया. पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस. अगर इन दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी हो गई T प्लस U एंड दिस कम्स आउट टू बी, कैलकुलेट करके देखिए, दिस कम्स आउट टू बी माइनस ZE स्क्वायर upon 8 pi epsilon naught r. This is energy of a single electron in orbit around a nucleus. Now we have got a negative sign over here. What does it signify? It signifies that electron is bound to the nucleus. There is an attractive force between the nucleus and the electron, so electron cannot leave on its own. Now students, after doing so much about Rutherford's atomic model, alpha scattering experiment, we are going to start now with the limitations of Rutherford's atomic model. आपको मालूम है कि जो साइंस है वो हमेशा इवॉल्विंग है. मतलब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी, उसने जो प्रेजेंट उस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थी उसको एक्सप्लेन कर दिया. पर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बढ़ते जाते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, तो जो पुराने मॉडल्स हैं वो फेल होने शुरू हो जाते हैं. मतलब ऐसा काफी बार होता है कि जो ओल्डर एग्जिस्टिंग मॉडल्स है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. ऐसा ही कुछ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ हुआ. तो और कई साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी इस रिगार्डिंग काफी रिसर्च कर रहे थे. तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो रदरफोर्ड मॉडल है, it is not explaining stability of an atom. How come? Let's go. According to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle emit radiations in form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक्सेलरेटिव चार्ज है वो एनर्जी एमिट करता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में घूम रहे और सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, सर्कल में रेवोल्यूट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेटेड है. अब इसके पास जो एनर्जी है वो इसने एमिट करनी ही करनी है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू शिफ्ट इन द लोअर ऑर्बिट्स, और लोअर ऑर्बिट्स में आता आता वो एकदम से न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो गया. तो इसका दैट इज it is going to be unstable, the whole structure is going to be unstable, but it is not actually, it is stable. इसका मतलब है कि ये जो रदरफोर्ड की जो एक्सप्लेनेशन है इसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक मिसिंग है. ठीक है, तो लेट्स रीड इट आउट अगेन. According to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle emit radiations in form of electromagnetic waves. The energy of accelerating electron should continuously decrease. The electron would spiral inwards and eventually fall into the nucleus. Thus, such an atom cannot be stable. So, Rutherford के अकॉर्डिंग ऐसी कोई एमिशन नहीं होती थी
and electron continue to rotate in the orbits. But with the other viewpoints, it is also true. So रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम एक्सप्लेन हुआ वो स्टेबल थी, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं. The next problem that arose was it could not explain line spectra of atom. According to classical electromagnetic theory, the frequency of electromagnetic waves emitted by the revolving electron is equal to frequency of revolution. As the electrons spiral inwards, their angular velocities and hence their frequencies would change continuously, and so will the frequency of light emitted. That is, they should emit a continuous spectrum. पर जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आता था, दैट वाज द लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिफाइंड सीरीज. मतलब सारी वेवलेंथ्स जो थी वो रेडिएशंस की नहीं आती थी, बट कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स थी जो आती थी. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, पर लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था. इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल was not able to explain this observation, that is a hydrogen spectrum or line spectrum of hydrogen. Okay, so now we switch over to the next. Now students, we are here something about कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, कि जिस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमती हैं उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूट करते हैं. तो आइए देखें कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है. इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल द न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू द सन अबाउट विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स. जो न्यूक्लियस का रेडियस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटेड 10⁻⁻15 मीटर, और जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस है 10⁻10, just like the orbit around the sun. If dimensions of solar system had the same proportions as those of an atom, would the earth be closer to or farther away from the sun actually? कि अगर हम रदरफोर्ड वाली प्रेडिक्शंस को रखते हैं कंटिन्यू, तो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी क्या प्रोपोर्शन होनी चाहिए, मतलब अर्थ इससे दूर होगा या पास होगा. जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में would earth be farther from the sun or closer to the sun? So let's calculate. It's actually a comparison question. So radius of earth's orbit is 1.5 into 10 to power 11 meter, and radius of sun is taken as 7 into 10 to the power 8 meter. So let's students, let's move on. एक अपनी स्टेटमेंट को पढ़ के एक अपनी नोटबुक पे डायग्राम बनाइए, जिसमें आप बीच में सन को रखेंगे और साइड पे अर्थ को रखेंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास जो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू 10 to the power -10 अपॉन 10 to the power -50. इसका ये मतलब हुआ कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. अब यही वाली प्रोपोर्शनैलिटी हम अर्थ सन के सिस्टम में डाल देते हैं. जो प्रेजेंट डिस्टेंस है अर्थ का वो है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, और सन का रेडियस है 7 into 10 to the power 8 मीटर. तो हम ऐसा करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस निकाल लेते हैं, 10 to the power 5 into 7 into 10 to the power 8. ये सारा कैलकुलेट करके आ गया 7 into 10 to the power 13 मीटर. पर प्रेजेंट डिस्टेंस क्या है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. इसका मतलब कि अगर ये प्रोपोर्शंस जो एटॉमिक प्रोपोर्शंस है अगर वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में भी अप्लाई होती हैं, तो अर्थ को हमसे काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए. अर्थ को सन से इतना दूर होना चाहिए, जबकि ये इतने डिस्टेंस पे. ठीक है. दिस इज मोर देन 100 times greater than the actual orbital radius of the sun. So Earth would be farther away from the sun. सन से बहुत दूर चली जाएगी, जितनी प्रेजेंट है उससे 100 गुना और ज्यादा दूर चली जाएगी, बेस्ड अपॉन द एटॉमिक प्रोपोर्शंस. ओके. एक बार इस क्वेश्चन को आप री करो, इसको रिवाइज करो और इसको दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश करो. ठीक है.
So now students, this is all about today's lecture. So now your work is to read out this chapter, इसके notes बनाएं, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें और एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनकी एक्सरसाइज वगैरह भी ट्राई, ठीक है। अब टिल देन, इसके बाद हम मिलेंगे लेक्चर 2 के लिए बहुत जल्दी ही। अब टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।